this field for around 7 years now. I have been writing content for different niches. Hello. I hope I'm audible to everyone. Ji, Zainab, you are audible. Okay, great. So I was just telling about my experience in content. I have been in this industry for last 7 years, and I have worked for multiple brands, helped businesses, rank well. So basically, uh, first thing I would like to start with is a basic introduction, because once we will know each other, a very basic introduction, which includes our names, what we do, like whether we are studying or whether we are working, in what field we are working. Only then we can get started with how we take this workshop forward. So if all of you can introduce yourselves in a minute. Just tell me about what you are doing right now and why are you interested in learning content. Can we start? Yes, please. जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह मदनी है। फैसलाबाद से मैं बिलोंग करता हूँ और पिछले तकरीबन 18 साल से गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए टीचर काम कर रहा हूँ और कुछ उर्दू कंटेंट राइटिंग में कुछ दिनों से, बल्कि कुछ महीनों से काम कर रहा हूँ। इसीलिए ये कंटेंट राइटिंग जो है ये थोड़ा सा अपीलिंग कोर्स था मेरे लिए, और फरहान भाई हमारे दोस्त भी हैं और इसलिए आज यहाँ पे मौजूद हैं। Okay, great. I hope you get to learn something from this workshop, Sure, Sanaullah. inshallah. Who's going next? I think Anam has raised her hand. Hi, Zainab. I hope you're doing well. Yeah, so I am interested in it so that I will be able to do the marketing in a better way, and Great. Who's next? I think Sayyida Manur, I can see your name. Can you introduce yourself a bit? I hope you're listening to me, Sayyida Mahanur. Okay, let's move to Kainat Pasha. If you can introduce yourself a bit. अस्सलाम वालेकुम। Waalaikumsalam. अच्छा, मैं इंटरमीडिएट स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने एफएससी के एग्जाम्स दिए और अब मैं फ्री हूँ, इसलिए इस टाइम को मैंने कहा कि इसके लिए याद करने में यूज कर लिया जाए। Okay, great. That would be great. I hope you get to learn something fruitful from this workshop. So who's going next? You guys can raise your hand. Yes, please, Muhammad is there. You can introduce yourself. I think आपका mic off है, इसलिए we cannot hear you. Muhammad is there. Okay, for those who are having their mic issues, can give their introduction in the chat section. We will appreciate if you will give the introductions. Yes, exactly. You can type in your introduction in the chat. Zainab, I guess we should move forward with the Yes, introduction exactly. and everything.
Okay, I'm sharing my screen with you guys. Can you guys see my screen? Yes, it's visible now. Yes, we can see. It's visible. Okay, great. So basically, before starting the workshop, I would very much appreciate if we keep it engaging, if you guys keep asking questions, if you guys keep giving your input during the session, because only then you can actually learn something from here, right? So this is basically about content. The first thing that comes to mind is why content, right? Like, why does businesses need content exactly? So I can tell you that content, since you see that the world is going online, everything, every business has to, make their presence online in order to, earn in order to convert their leads into sales and make revenue. Any business that is not present online in this era is actually losing a great opportunity, because if you look, even if you look at yourself, you can tell that uh, 90% of our shopping experiences are online these days, right? Whether we are buying clothes, whether we are buying food, whether we are looking for real estate market or anything else, we are always going online, searching for things, finding what is up to the mark, what we like, and then purchasing. Even if we are going to purchase in person, if for example if you are going to visit a property, the first thing that comes to your mind is uh, go to the Google, search for it, go to an LLM like ChatGPT or Gemini or Claude, and ask it for the best properties listed in your area, best real estate places listed in your area. So online presence has become very important. And why content is important is because I can share. Okay, Sundar Pichai once shared that how Google works. Because the first thing that we all do is whenever we are searching for a product or a service, we go to Google, we type in our query. Like, let's say I want to buy a mobile phone. I will go type best mobile phones available. I'll type in the brand as well, maybe. And I will look around for the options. So what Google says is that how it works. Google works in a way, Google says that it has a lot of pages, a lot of, brands and companies have their content listed. Google indexes them. Google के पास वो सारा जो भी डेटा है, जितने भी ब्रांड्स का, जितने भी कंपनीज का, दैट इज ऑल लिस्टेड. और वो उनमें से फिर टॉप कंटेंट जो होता है, जो मोस्ट रेलेवेंट होता है, जो यूजर की क्यूरी के. मिस जैनब, सॉरी फॉर इंटरप्शन. आप मेरे ख्याल में प्रेजेंटेशन शेयर की हुई आपने? आप प्रेजेंटेशन भी Sorry, दिखा रही हैं? is it visible now? Sorry. No, presentation is not visible. Is it visible now? No. आप दोबारा से शेयर का ऑप्शन अनचेक करके दोबारा से कीजिए और उसके बाद फिर हम देखते हैं. Let me do it. Let me do it. Just give me a minute. Is it visible now?
यस विजिबल। Yes. अब मेरे ख्याल में आई वुड सजेस्ट कि आप दोबारा से फर्स्ट स्लाइड से अगर काइंडली स्टार्ट कर लें। थैंक यू। Yes, this is the first slide. The previous one was the introduction only. Okay, so we were talking about how Google basically, shows you the result whenever you are searching. जब भी आप कोई product खरीदने जाते हो, कोई service खरीदने जाते हो, and you search for it online, Google के ऊपर आप जाके search करते हो, तो Google कहता है कि हमारे पास बहुत सारे businesses के pages हैं जो कि हमने इंडेक्स किए हुए हैं और हम मोस्ट रेलेवेंट क्यूरी को शो करते हैं अपने यूजर को। फॉर एग्जांपल आपने सर्च किया मुझे बेस्ट मोबाइल फोन चाहिए इन पाकिस्तान या इन whatever area you are residing, so there would be hundred of pages, thousands of pages of the mobile phone brands, but वो Google शो किसको करेगा? जिसका सबसे relevant आंसर होगा। उसके लिए different factors होते हैं that we will be talking about later. So इस बात को बताने का basically reason ये है कि you can understand why businesses actually need content. Content is important because जब तक आपके audience को, आपके customer को पता नहीं होगा कि आपकी product क्या है, आपकी service क्या है, why are you basically selling it, what are you basically selling it, तो वो why would they buy it, वो क्यों खरीदेगा आपसे, ठीक है? That is why content is important. Be it a local brand, be it an international brand, कोई छोटा से छोटा बिजनेस है या कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस है, कंटेंट मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर देम इन ऑर्डर टू रीच देयर ऑडियंस, ठीक है? आई होप दैट इज क्लियर। इसके अलावा अगर आप में से किसी का भी कोई कमेंट है इसके ऊपर तो यू गाइस कैन शेयर कि कंटेंट क्यों जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। आई विल गिव लाइक 5 मिनट्स ताकि हम इसको डिस्कस कर सकें। आप में से अगर किसी का भी कोई पॉइंट है आप चैट में भी भेज सकते हो और यू कैन रेज योर हैंड एंड टॉक अबाउट इट। एनीवन? Can you repeat the question, please? Okay, so the question is why content is important for any business, because that is what I was discussing अभी कि content क्यों जरूरी होता है किसी भी ब्रांड के लिए। तो आपका इसके ऊपर कोई कमेंट अगर हो तो। जी श्योर। एक्चुअली कंटेंट के बारे में कहा जाता है चाहे ये स्पोकन हो या रिटन हो, तो जैसे मार्केट में एक वर्ड भी हम देखते हैं कि कंटेंट इज किंग। हर चीज आपकी कंटेंट के ऊपर बेस करती है। आपकी हर प्रोडक्ट, आप कुछ भी सेल कर रहे हैं तो अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए आपको या विजुअल कंटेंट चाहिए या स्पोकन या रिटन, किसी भी तरीके से आपने जो भी अपने आप को मार्केट करना है तो उसके लिए कंटेंट आपको चाहिए। तो इसलिए आई थिंक ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। Exactly, very good. Because yes, content जब तक आपकी ब्रांड कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करेगी, be it a written content or visual content or any form of content, तो आप जो है क्या कहते हैं अपने ऑडियंस को रीच नहीं कर सकते, ठीक है? आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हो कि आई हैव अटैच्ड अ स्क्रीनशॉट which is about why your business needs content marketing. अच्छा, इसमें कुछ स्टैट्स हैं that 6 times conversion rates higher हो जाते हैं उन ब्रांड्स के लिए जो कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं और जो ब्रांड कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे, मींस जिनके पास कंटेंट मार्केटिंग जिसके ऊपर जो एफर्ट्स कर रहे हैं उनकी सेल्स 6 टाइम्स ज़्यादा है उन ब्रांड से जो कि कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर एफर्ट्स नहीं कर रहे। इसी तरह से 73% B2B कंटेंट मार्केटर्स क्रिएट मोर कंटेंट टुडे देन द लास्ट ईयर। अच्छा, इसकी डिमांड भी अब बढ़ती जा रही है सिंस गूगल कीप्स अपडेटिंग देयर एल्गोरिथम्स, जिसके थ्रू हमारे पास सारा कुछ डेटा नज़र आ रहा होता है। तो जो कंटेंट मार्केटिंग की डिमांड है इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड 73% ऑफ B2B कंटेंट मार्केटर्स आर क्रिएटिंग मोर कंटेंट। B2B मींस बिजनेस टू बिजनेस। तो जो भी ऐसे ब्रांड्स हैं जो बिजनेस को सेल कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट या सर्विस, वो 73% ज़्यादा पहले से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज दे आर नाउ अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। 86% of B2C marketers are content marketing. B2C means business to कस्टमर और कंज्यूमर, वो बिजनेसेस जो अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कस्टमर्स को डायरेक्ट बेच रहे हैं, वो भी 86% उन्होंने अपनी कंटेंट मार्केटिंग की एफर्ट्स को बढ़ा दिया है। 91% of B2B marketers are content marketing. 60% of content marketers create at least one piece of content per week. ये स्टैट्स जो है इम्पॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए ये जानने के लिए कि कंटेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ कंटेंट सीखना चाहते हैं एंड हेल्प करना चाहते हैं बिजनेसेस की
अर्न करना चाहते हैं थ्रू कंटेंट, तो ये स्टैट्स आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आप मार्केट में अपनी डिमांड समझ सके। अगर आपने कंटेंट सीखा और आपने कंटेंट को सही तरीके से इस्तेमाल किया अपनी स्किल को, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द मार्केट, बिकॉज एवरी अदर ब्रांड, बी इट बिजनेस टू बिजनेस और बी इट बिजनेस टू कंज्यूमर और कस्टमर्स, कोई भी ब्रांड है उसको हर डिफरेंट फॉर्म्स के कंटेंट मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, यहाँ लोकली भी और इंटरनेशनली भी, स्मॉल सेटअप्स में भी, बिगर सेटअप्स में भी। सो दैट मीन्स अगर आप इस स्किल को सही तरीके से सीखते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर यू इन द मार्केट। ओके, सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज ओके, जब आपको पता चल जाता है कि कंटेंट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, कंटेंट आपको सीखना चाहिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही रेज होता है कि हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट कन्वर्ट्स। ओके, सो सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि कंटेंट राइटिंग जो है वो जस्ट एक स्किल है राइटर्स के लिए, ठीक है, कि किसी को अगर राइटिंग बहुत अच्छी करनी आती है तो दे कैन बिकम अ कंटेंट मार्केटर और समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज नॉट द रियल स्टोरी। The real story is that whether you know how to write content that actually converts, because जो हम अभी मैं आपको स्टार्टिंग से जो भी बात बता रही हूँ उसमें you can understand that content लिखने का रीज़न क्या है। content लिखने का रीज़न है कि जो भी बिजनेस है वो उससे अर्न कर सके। अगर आपको कंटेंट सेल्स नहीं लेकर आ रहा, अगर आपको कंटेंट लीड्स नहीं लेकर आ रहा बिजनेस के पास, दैट मीन्स इट्स ऑफ नो यूज। तो सबसे कंटेंट के 3 हमारे पास इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, जिसमें से एक है इन्फॉर्म, दूसरा है एंगेज और तीसरा है कन्वर्ट। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, एक गिफ्टिंग बॉक्स का बिजनेस है दैट आई एक्चुअली डिड स्टार्टेड बैक इन टाइम। मैंने अपना एक गिफ्टिंग बॉक्स का बिजनेस स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम के ऊपर पेज बना के, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरा काम ये है कि मैं अपनी ऑडियंस को ये बता सकूं कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, इन्फॉर्म करने का। उसके बाद सेकंड स्टेज ये आता है कि मैं उनको एंगेज कर सकूं अपने कंटेंट के साथ, मैं उनको बता सकूं कि किस तरह मेरा जो बिजनेस है, जो मैं सेल कर रही हूँ गिफ्ट बॉक्सेस, वो उनके काम आ सकता है। और उसके बाद थर्ड स्टेज पे मैं उनको इस चीज़ के लिए कन्विंस करूँगी कि वो मुझसे गिफ्ट बॉक्स खरीद लें, बिकॉज मैं क्या यूएसपीज, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट उनको दे रही हूँ, क्या स्पेशलिटीज़ उनको दे रही हूँ, और वो मुझसे वो गिफ्ट बॉक्सेस खरीद लें, राइट। तो अच्छा, जस्ट टू टेल यू गाइस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बीच में। यू कैन ऑल्सो रेज योर हैंड्स सो दैट जो भी आपकी ओके, कायनात का क्वेश्चन है। ओके, सो योर क्वेश्चन इज वेरी गुड एंड वेरी इंटेलिजेंट, दैट जब एआई कंटेंट क्रिएट कर सकता है तो व्हाई वुड पीपल हायर अस, ठीक है। तो इसका आंसर आपको इंशाल्लाह मिलेगा इस वर्कशॉप के एंड तक, ठीक है। हम लोग एलएलएम और चैट जीपीटी जो हमें कंटेंट क्रिएट करके देता है उसकी तरफ भी बात करेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स द वर्ल्ड इज चेंजिंग, कंटेंट इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं। बट जब आप ये वर्कशॉप के एंड तक पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट सिर्फ राइटिंग नहीं है, इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, इसके पीछे पूरा बिजनेस को समझना, अपने ऑडियंस को समझना, एंड दैट एलएलएम्स कैन नॉट डू, दैट एआई कैन नॉट डू, दैट ओनली अ ह्यूमन कैन फीड इनटू द एआई। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि by the end of this workshop you would be able to learn that AI से हमने किस तरह कंटेंट क्रिएट करवाना है that actually works, ठीक है। इसी के ऊपर हम अभी बात कर रहे थे कि कंटेंट सिर्फ क्रिएट कर देना राइटिंग का नाम नहीं है, इट्स अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, गूगल की अपडेट आई है अभी रिसेंटली। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि गूगल जो है ना साल में 2, 3, 4 अपडेट्स अपनी देता है, उसमें वो अपने जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं उनको गाइड करता है, कंटेंट मार्केटर्स को बताता है कि उसको किस तरह का कंटेंट चाहिए। तो ओवर द टाइम गूगल उसने अपने फैक्टर्स को रैंक करने के लिए अपने फैक्टर्स को बेहतर बनाया है और ये कोशिश की है कि जो बेस्ट बिजनेसेस हैं वो उनको ऊपर टॉप पे दिखाए ताकि उनकी सेल्स अच्छी हो, उनके पास रेवेन्यू अच्छा है, जो बेस्ट बिजनेसेस हैं। तो उसके लिए गूगल की अभी रीसेंट अपडेट आई है, मैं आपको ये दिखा देती हूँ यहाँ पर।
ये आप ये गूगल की अपडेट है जो कि फरवरी 2026 में आई थी. It says that today we have released the February 2026 Discover Core update. This is a broad update for systems that surface articles in Discover. Okay, जो इसके main points हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. Showing users more locally relevant content from websites based in their country. Google कहता है कि हम customers को वो content दिखाएंगे जो उनके surrounded areas में है, जो उनके लिए important है. इसके अलावा गूगल ये कहता है रिड्यूसिंग सेंसेशनल कंटेंट एंड क्लिकबेट इन डिस्कवर. वो इस तरह का कंटेंट जो है वो खत्म कर रहा है दिखाना जो बहुत सेंसेशनल है, जो कि बहुत सेल्सी है, जिसमें सिर्फ ये बात हो रही है कि आप हमसे खरीद लें, हम बहुत अच्छे हैं, और ये नहीं बता रहे कि क्यों अच्छे हैं. तो उस तरह का कंटेंट गूगल जो है वो पसंद नहीं करता. थर्ड उन्होंने कहा है शोइंग मोर इन डेप्थ ओरिजिनल एंड टाइमली कंटेंट फ्रॉम वेबसाइट्स विद एक्सपर्टाइज इन गिवन एरिया बेस्ड ऑन आवर सिस्टम्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द साइट्स कंटेंट. ओके, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि गूगल ने कहा है कि हम वो कंटेंट ज़्यादा दिखाएंगे अपने यूजर्स को, अपने कस्टमर्स को, जो कि ओरिजिनल हो, डिटेल्ड हो और अथॉरिटी वेबसाइट से आ रहा हो. यानी कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, ठीक है, तो आप के जो कंटेंट है, आपके जो आर्टिकल्स हैं, आपका जो वेब पेज है, उसके ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ये बता सके कि आप एक्चुअली इस एरिया में आपको कुछ आता है, आपको मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक्चुअली में आती है, आपको उसकी सारी चीज़ें मालूम है, ना कि सिर्फ आप बार बार अपनी वेबसाइट पे लिख रहे हो दैट वी आर द बेस्ट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी. वो सेंसेशनल कंटेंट में आ जाता है और गूगल उसको पसंद नहीं करता. ठीक है, तो हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि सेम गूगल की भी यही अपडेट है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कंटेंट की 3 फंक्शंस होते हैं, इन्फॉर्म, एंगेज एंड देन कन्वर्ट. यानी कि आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि वो क्या करता है. ठीक है, पहले स्टेज पे फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, तो मैंने एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की गाइड लिख दी कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट किस तरह होती है. ठीक है, उसके बाद एंगेज करें तो मैं उनको अपने केसेस दिखाऊं कि मैंने इस बिजनेस के लिए मोबाइल ऐप बनाई और वो इस तरह परफॉर्म कर रही है, तो वो उसमें देख सकते हैं, उसमें एंगेज हो सकते हैं. और फिर मैं थर्ड स्टेज पे आई कन्वर्जन के, विच सेज के नाउ दैट यू नो कि हमारा ये एक्सपर्टीज है, हम ये आपकी हेल्प कर सकते हैं इसमें, तो आप हमारे साथ हमारी सर्विसेज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की खरीद सकते हैं. एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछनी हो तो यू गाइस कैन रेज योर हैंड और सेंड इन योर क्वेश्चंस इन चैट सेक्शन. किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो हम नेक्स्ट उसकी तरफ मूव करते हैं. व्हाट आर द एसईओ प्लस कन्वर्जन बेसिक्स. ठीक है, कंटेंट की जब भी बात होती है तो एसईओ की भी बात होती है. एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है? गूगल होता है. मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर. फॉर एग्जांपल हम गूगल के ऊपर जो भी सर्च कर रहे हैं, दिस इज सर्च इंजन. गूगल इज अ सर्च इंजन. ठीक है, मैंने इसके ऊपर सर्च किया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज. ठीक है, तो गूगल के ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं. अब ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, दिस इज द सर्च इंजन रिजल्ट पेज, सर्प भी कहते हैं हम इसको. इसके ऊपर टॉप पे जो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उनको गूगल ने रैंक किया होता है ऑन द बेसिस कि उन्होंने रेलेवेंट कंटेंट लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर, उन्होंने अपने यूजर की क्यूरी जो भी है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, तो मुझे चाहिए, तो उस हिसाब से रेलेवेंट कंटेंट लिखा हुआ है, ऑथेंटिक है, ऐसे केस स्टडीज दिखाए हुए हैं कि वो इसमें एक्सपर्ट है, तो उन बेसिस पे गूगल ने, जैसे 10 पर्ल्स आ रहा है हमारे पास, वेरी बिग मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पाकिस्तान, क्योंकि रिजल्ट्स मुझे लोकली भी शो कर रहा है क्योंकि मेरा इसके ऊपर ऑफ कोर्स जीमेल साइन इन हुआ है, तो उसको मेरा डेटा भी पता है, लोकेशन भी पता है, तो वो मुझे इस हिसाब से दे रहा है कराची के पाकिस्तान और कराची के बेसिस पे. ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर वीपीएन से यूएस का वीपीएन कनेक्ट कर लूँ तो वो मुझे यूएस के हिसाब से रिजल्ट्स देगा. ठीक है, अब इसके ऊपर जैसे टॉप के रिजल्ट्स आ रहे हैं,
10 पल्स आ रहे हैं, इंटेलेक्ट सॉफ्ट आ रहे हैं, ये सब वो हैं जिन्होंने अपनी एसईओ अच्छी करी हुई है, कंटेंट अच्छा लिखा हुआ है, वो हमें ऊपर नजर आ रहा है। ठीक है, तो एसईओ का बेसिकली काम ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप अपने कंटेंट को इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि वो सर्च इंजन के ऊपर टॉप पे रैंक करे। ठीक है, सर्च इंजन करता क्या है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अटैच किया है आपके लिए। जो गूगल के बॉट्स होते हैं, आप जब भी कोई कंटेंट लिख के पब्लिश करते हैं तो गूगल के बॉट्स आते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या है, उसको क्रॉल करते हैं, उसके बाद उसको इंडेक्स करते हैं। अगर उनको रेलिवेंट लगता है वो कंटेंट, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज का पेज है और उसके ऊपर उसी से रिलेटेड कंटेंट लिखा हुआ है, जैसे हम अभी ये 10 पल्स का देख रहे थे यहाँ पे। तो मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको साथ साथ पता चले, जिसके इन्होंने डायरेक्टली बताया हुआ है कि हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, engage your customers with innovative and future ready mobile applications powered by AI। इन्होंने बताया कि हम आपको एप्लीकेशन ऐसी बना के दे सकते हैं जिससे आपके कस्टमर्स आपके साथ एंगेज करें। ठीक है, डायरेक्टली बता दिया उन्होंने। उसके बाद फिर वो उसकी डेप्थ में गए कि और क्या क्या सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, किस तरह प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें गूगल का जो बॉट है वो अगर क्रॉल करता है, वो देखता है कि अच्छा रेलिवेंट लिखा हुआ है इन्होंने, तो वो आपके पेज को इंडेक्स कर देता है अपने पास। अब जब वो इंडेक्स हो गया तो जब भी यूजर आके सर्च कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया था कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज, तो क्योंकि वो गूगल के बॉट्स को बिल्कुल बेस्ट रिजल्ट लगा था, उन्होंने वो टॉप पे शूट किया। ठीक है, द एल्गोरिथम सिलेक्ट्स रेलेवेंट रिजल्ट्स, यही मैं आपको बता रही हूँ कि उसने उसको बिल्कुल बेस्ट लगा तो उसने उसको सेलेक्ट किया और फिर वो मुझे शो किया। ठीक है, तो इसमें वो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करता है आपके रिजल्ट को टॉप पे शो करने के लिए। उसमें ये होता है कि आपके कंटेंट के पीछे मीनिंग बिल्कुल एक्यूरेट लिखी है। फॉर एग्जांपल, मैं एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी का पेज बनाती और उसके ऊपर कुछ और डाल देती, मैं उसके ऊपर सॉफ्टवेयर की सर्विसेज बेचना शुरू कर देती, उसके बारे में कंटेंट लिख देती, या मैं उसके ऊपर डिज़ाइन सर्विसेज का कंटेंट लिख देती, तो गूगल उसको शो नहीं करता। वो कहता है कि इनका टॉपिक तो कुछ और था लेकिन इन्होंने कंटेंट कुछ और लिख दिया, यानी कि रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, रेलेवेंस ये कि वो यूजर की क्यूरी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज चाहिए और वो पेज मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज ही सेल कर रहा है, तो वो रेलेवेंट है। क्वालिटी, क्वालिटी वो इस चीज़ से देखता है कि इनकी अथॉरिटी कितनी है, ये किस तरह का कंटेंट लिख रहे हैं, इनकी बातों से पता चल रहा है कि ये एक्चुअली ऐप डेवलपमेंट इनको पता है क्या होता है और ये कर चुके हैं। इन्होंने ऐसी केस स्टडीज इसमें डाली हुई है अपने पेज में कि एक्चुअली मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर चुके हैं, तो उससे वो क्वालिटी असेस करता है। उसके बाद वो यूजेबिलिटी देखता है, ईज ऑफ वेबसाइट एक्सेस एंड नेविगेशन, कि आपकी वेबसाइट कैसी बनी हुई है, ईजिली एक्सेसिबल है या नहीं। और उसके बाद वो कॉन्टेक्स्ट देखता है कि आपने किस तरह की उसमें बातें करी हुई है। ठीक है, तो ये इन सब में जो सबसे पहला स्टेप है वो मीनिंग का है और वो चीज़ आपकी कंटेंट ही कवर करता है। जो मीनिंग और रेलेवेंस वाले पॉइंट्स हैं वो आपकी कंटेंट आपने किस तरह लिखा है वो कवर करता है। ठीक है, तो जो भी बेसिक्स हैं एसईओ के वो ये हैं कि आप रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज़ करें। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अगर कंपनी है आपकी तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज और इस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करें। आपकी हेडिंग्स और स्ट्रक्चर क्लियर हो, आपका मोबाइल आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन हो वो प्रॉपर हो, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के ऊपर कैसी दिख रही है, आपकी लैपटॉप पे कैसी दिखती है, टैबलेट पे कैसी दिखती है, और आपकी मेटा डिस्क्रिप्शंस प्रॉपर है। अच्छा, मेटा डिस्क्रिप्शंस और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। इसका एसेंस इस बात का ये है एसईओ का कि अगर आपका कंटेंट यूजर्स को मिल नहीं सकता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो आपने इस तरह से उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है कि सर्च इंजन्स को पहले वो समझ में आए, वो उसको रैंक करें और वो आपके यूजर्स तक पहुँचे। ठीक है, अच्छा, सबसे किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो मुझे प्लीज़ बता दें। हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ फिर इंशाल्लाह मूव करेंगे। कुछ टूल्स हैं जो कि हमें कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ऊबर सजेस्ट एक टूल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और एक टूल है एचरेफ्स। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है।
Can anyone respond for this? जी नजर आ रही मैम। Okay, great. So Ahrefs पे मैं आपको बताती हूँ। जी अभी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, पहले स्क्रीन नजर आ रही थी आपने जब वेब एक हमारा कीवर्ड रिसर्च टूल है जिसको अब नहीं आ रही। अब आ रही है मुझे? जी अब आ रही है नजर? ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमारे पास Ahrefs टूल है, इसमें भी हम ऊपर सजेस्ट पे देख लेते हैं। Ahrefs के मेरे पास जो है ना वो क्रेडेंशियल्स अभी नहीं है। Ahrefs के ऊपर फॉर एग्जांपल आप एक कीवर्ड डालते हैं, जैसे मेरी कंपनी है वो एप्स बनाती है, ठीक है, हम ऐप डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इस तरह का कंटेंट लिखूँ कि मेरे यूजर्स को, जिन यूजर्स को ऐप बनवानी है उन तक वो कंटेंट पहुँच सके और उनको मैं कन्विंस कर सकूँ कि मेरी ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, मुझे एक्सपर्टीज़ है इसके अंदर ऐप्स बनाने में एंड ऑल दैट, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं बेसिक अपना ऐप डेवलपमेंट का जो कीवर्ड है वो इसमें डाल के सर्च कर लूँगी। ओके, कायनात, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं वर्कशॉप के एंड में दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि किस तरह हमारा कीवर्ड रिसर्च होता है। ठीक है, मैंने ऐप डेवलपमेंट यहाँ पर डाला था, तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं, जैसे यार है कीवर्ड रिसर्च सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम ये बताता है कि इतना % लोग जो है ना, इतने लोग या इतनी बार ये कीवर्ड को सर्च किया गया वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ये हमें वर्ल्ड वाइड डेटा दे रहा होता है। इसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप जो है क्या कहते हैं, देख लो कि कौन सी डिवाइस पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ना लोकेशंस भी आ रही हैं, ये तो ऑल लोकेशंस का आ रहा है 74K, ठीक है। और ये जो डेटा आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है यूएस का, नहीं ये पाकिस्तान का आ रहा है, सॉरी। अगर मैं यूएस सेलेक्ट करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी सर्विस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में देना चाह रही हूँ, तो यूएस का यहाँ पे मुझे वो बता रहा है 9.9K, ठीक है। इसका मतलब इतने लोग जो है वो ऐप डेवलपमेंट लिख के सर्च कर रहे हैं। या अगर मैं ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज डाल देती हूँ, अच्छा हम ऐप डेवलपमेंट ही चेक करते हैं अभी। तो ऐप डेवलपमेंट का ओवरऑल मेरे पास आ रहा है पाकिस्तान में 1.3K, यानी कि 13,000 लोग जो है वो ये टर्म सर्च कर रहे हैं। इसके साथ एसईओ डिफिकल्टी क्या होती है? एसईओ डिफिकल्टी ये होती है कि ये टर्म बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज बेच रहे हैं लोग, वो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जब वो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं तो इसकी डिफिकल्टी जो है वो ज़्यादा है, यानी कि अगर मैं इसके ऊपर कंटेंट लिखूंगी तो मुझे बहुत मुश्किल से है कि मुझे रैंक कर सकूं, ठीक है। इसके ऊपर अच्छा टॉप पेजेस ये आ रहे हैं। मिस जैनब, ये बताइएगा ये जो नंबर्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं इसका टाइम फ्रेम क्या है? ये पर डे है, पर आवर है या पर मंथ है? इसका टाइम फ्रेम क्या है? नहीं, ये ओवरऑल आ रहे होते हैं, पूरा ओवरऑल जो है वो एवरेज बता रहा होता है।
अब ये 1.3 के ये ओवरऑल है, ये सिर्फ इतनी दफा ही सर्च हुआ होगा? ओवरऑल से मुराद हम कुछ तो इसका टाइम स्पैन होगा ना, 1 महीना होगा, 1 साल होगा? आप मैं ये जानना चाह रहा था कि ये नंबर्स किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये लेटेस्ट हमारे होते हैं और ये एवरेज बेसिस पे हो रहे होते हैं। तो ऐसा होता है कि विद टाइम ये अपडेट होते रहते हैं, क्योंकि एवरेज नंबर बता रहा होता है बेसिकली। तो ये पर डे का हो सकता है कि पर डे जो है वो एवरेज इतना आ रहा है वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान में या इस तरह से। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है। तो अब ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम जो होता है वो अगर ज़्यादा है कीवर्ड का, ठीक है, और उसकी एसईओ डिफिकल्टी भी ज़्यादा है, तो फिर हम ऐसे कीवर्ड्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं लेना। लेकिन अगर इसकी एसईओ डिफिकल्टी कम होती, ठीक है, अगर इसकी 40s के अंदर होती है एसईओ डिफिकल्टी, तो इसका मतलब अभी इतने सारे ब्रांड्स ने इसके ऊपर कंटेंट लिखा नहीं है। अभी हमारे पास चांसेस हैं कि हम कंटेंट इसके ऊपर लिख सकते हैं और हम जो है वो रैंक कर सकते हैं गूगल के ऊपर। लेकिन अगर इसकी एसईओ डिफिकल्टी ज़्यादा है, इसका ये मतलब ये कि हम इसके ऊपर कंटेंट लिख ही नहीं सकते। वी कैन ऑलवेज ट्राई। और अगर हम बहुत रेलिवेंट कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको 10 पर्ल्स का भी दिखाया था, क्योंकि ऑफ कोर्स मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज एक बहुत पॉपुलर कीवर्ड है। इसकी सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा होती है, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारी बिजनेसेस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये सर्विसेज ऑफर कर रही हैं। लेकिन आप जितना रेलिवेंट कंटेंट लिखेंगे, जितना ऑथेंटिक कंटेंट उसमें अपनी केस स्टडीज डालेंगे, अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस शोकेस करेंगे, तो उतना ज़्यादा गूगल आपको अथॉरिटी देगा, उतना ज़्यादा गूगल आपको टॉप पे रैंक करेगा। ठीक है। अच्छा, आपके अपने पर्सपेक्टिव से एज ए राइटर मैं आपको ये बता सकती हूँ, कीवर्ड रिसर्च करने का जो तरीका है वो ये अभी गूगल सजेस्ट और एह्रेफ्स वाले टूल के अलावा थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। ठीक है, अब ये जो टूल्स है ना, इसमें डेटा थोड़ा लेट आता है। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा पुराना डेटा मिल सकता है आपको। द लेटेस्ट ऑप्शन इज आप रेडिट पर चले जाओ। अगर आप B2B ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस टू बिजनेस, ऐसा कोई ब्रांड है जो बिजनेस को अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचता है, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन आपके पास रेडिट है। ठीक है, रेडिट के ऊपर आप क्यूरी सर्च कर सकते हैं। अब रेडिट के ऊपर मैंने सर्च किया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो मुझे इसके ऊपर पता एक्चुअली में लोगों के ना, क्योंकि मेरी सर्विसेज कोई रैंडम बंदा तो नहीं खरीदेगा। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कोई इंडिविजुअल तो आगे नहीं खरीदेगा, कंपनी ओनर होगा, कोई एंटरप्रेन्योर होगा, उसी को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज चाहिए होंगी। तो ऐसे लोग जो है वो रेडिट पर मौजूद होते हैं। इस तरह के लोगों की जो कम्युनिकेशंस है वो रेडिट या एक और हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है। आप लोग अगर अपने पास ये प्लेटफॉर्म्स नोट कर लें तो दैट विल रियली हेल्प यू। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है कोरा, इसके ऊपर वो आके अपने क्वेश्चंस शेयर करते हैं। इसमें लॉगिन करना पड़ेगा। चलिए आप रेडिट देखते हैं। अभी जैसे मैंने सर्च किया मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो मेरे पास पहली क्यूरी आ रही है, हाउ टू गेट स्टार्टेड इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। इस तरह से मेरे पास पोस्ट आ रही है, बिल्ड अ मोबाइल ऐप इन वीकेंड एंड स्टार्ट मेकिंग मनी, लुकिंग फॉर बैक एंड डेवलपर, ये तो डिफरेंट है, नीड डेवलपर, लुकिंग फॉर ऐप डेवलपर्स। एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स आर यू बेटिंग ऑन फॉर 2026। इसी तरह से हाउ डू फाउंडर्स चूज द राइट मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी फॉर एन एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। तो ये जो क्यूरीज है ना जो लोग पूछ रहे हैं, ये हमारे डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सर्विसेज सेल कर रही हूँ, तो ये जो लोग हैं ये सवाल पूछ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में सर्विसेज मेरी खरीदेंगे। तो इनकी जो क्यूरीज हैं, अगर मैं उनको सही से आंसर कर देती हूँ अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग्स में, तो डेफिनेटली ये कंटेंट उन तक पहुंचेगा और वो फिर हमारी सर्विसेज लेने आएंगे। सो द कोर ऑफ ऑल, जो कि मैंने अभी जितनी भी बात करी, उसको कोर ये है कि आप अपनी रिसर्च के लिए टूल्स यूज़ करेंगे कीवर्ड्स ढूंढने के लिए कि किस टॉपिक पे हमें लिखना है बेसिकली। इसके अलावा आप ये प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, रेडिट यूज़ कर सकते हैं, कोरा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म्स बहुत हेल्प करते हैं हमें सर्च करने में कि क्या क्यूरीज, क्या लोगों के अभी सवाल है। अच्छा, मैं इसको एक आपको सिंपलर ब्रांड की एग्जांपल भी देके समझाती हूँ। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट तो B2B हो जाता है,
हम एक ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, एक रेस्टोरेंट है जो कि चाइनीज फूड बेच रहा है, ठीक है। तो चाइनीज फूड रेस्टोरेंट के लिए अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो आप किस तरह अपनी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। टूल्स से तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका रेस्टोरेंट लोकल है, कराची में, पाकिस्तान में रेस्टोरेंट है और वो चाइनीज फूड बेच रहा है, तो आप ऐसी फूड की कम्युनिटीज में जा सकते हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप हुआ करता था, आई एम नॉट श्योर कि वो अभी भी एक्टिव है या नहीं, स्वॉट रिव्यू एंड एनालिसिस के नाम से एक ग्रुप हुआ करता था। तो उसके ऊपर लोग बहुत ज़्यादा आके फूड रिव्यूज़ पोस्ट करते हैं और जो है क्या कहते हैं, फूड रिव्यूज़ करते हैं लोग, इंक्वायरी करते हैं कि कहाँ से हमें बेस्ट फूड मिल सकता है, किस तरह का बेस्ट फूड मिल सकता है। तो वहाँ पर आप फिर ढूंढ सकते हैं कि लोग क्या बात कर रहे हैं फूड के बारे में और चाइनीज फूड के बारे में, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके अराउंड आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च जो है ना, वो एक बहुत वास्ट चीज़ है। इसमें सिर्फ टूल्स की हेल्प से आप बेस्ट कंटेंट नहीं क्रिएट कर सकते, आपको अपनी रेलेवेंट कम्युनिटीज़ में, क्योंकि इन दिस एरा, एआई के एरा में, और जो हमारा सारा सिस्टम अब चेंज हो गया है, तो उसमें ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कस्टमर्स की एक्चुअल क्यूरीज को ढूंढें और उसके अराउंड कंटेंट लिखें। सॉरी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं एसईओ से रिलेटेड, कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, तो मुझे प्लीज़ बताइए। SEO is king. Okay. मेरा एक क्वेश्चन है मिस जैनब, मे बी इट्स टू अर्ली टू आस्क। अभी तक आपने जितना भी हमें एग्जांपल्स दिए हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स के ऊपर, वो हैं मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कंसिडरिंग आवर ऑडियंस जो कि एक डाइवर्स बैकग्राउंड है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एजुकेशन से रेलिवेंट हैं, कुछ मे बी किसी और सेक्टर से हों, तो क्या हम इसको भी प्रैक्टिकली वहाँ पर अप्लाई करना सीखेंगे कि एक टीचर के लिए कंटेंट राइटिंग को यूज़ करना कैसा होगा, एक मे बी एक डाटा एनालिस्ट के लिए कंटेंट राइटिंग को यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा, ये किस तरह से चीज़ को, इस हवाले से बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल, हम इसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। अगर आप अपने, फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हैं और आप अपने टीचिंग बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, लाइक आप ऑनलाइन ट्यूशंस देना चाहते हैं, लेट्स से, बिकॉज दैट हैज बिकम अ लॉट कॉमन दीस डेज। आप अपनी एक वेबसाइट बना रहे हैं या आप अपना जस्ट अपने लिंक्डइन के ऊपर ही कंटेंट को यूज़ करते हुए अपनी जो कस्टमर्स हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रीच आउट करना चाहते हैं, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं कि आप कीवर्ड रिसर्च करो, आप देखो कि स्टूडेंट्स क्या ढूंढ रहे हैं, उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स वो, और या आप ऐसी कम्युनिटीज़ पे जाओ जहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं और आप वहाँ देखो कि उनकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ क्या है, वो किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप उससे रिलेटेड कंटेंट शेयर करो। या अगर आप एक टीचर है तो आप अपना एक चैनल भी बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना लिया, तो उसके लिए कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, आप मार्केट एनालिसिस करेंगे। ये जो कम्युनिटीज़ का पार्ट मैंने मेंशन किया है, ये बेसिकली एक मार्केट एनालिसिस कहलाता है कि आप अपनी मार्केट को देखें, उसको चाहिए क्या, और फिर आप उसको उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करें। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, ठीक है। तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की मैंने एग्जांपल दी बिकॉज दैट वाज व्हाट आई एम करंटली वर्किंग ऑन, बट ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, बी इट अ रेस्टोरेंट बिजनेस, बी इट अगर आप टीचिंग में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, अपनी एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि मेरा एक गिफ्ट बॉक्स का बिजनेस था जिसके ऊपर मैंने मार्केटिंग करी, तो उसमें भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अच्छा अनम, आपका क्वेश्चन था, एज ऑफ नाउ आई गेट इट, कंटेंट इज किंग बट एसईओ इज द किंगडम, सो नीड टू अंडरस्टैंड देयर इंटरलिंक कनेक्शन। ये मैंने अभी बिल्कुल यही मेंशन किया था कि कंटेंट आपने लिख लिया, कंटेंट आपके ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगा, वहाँ पर आ जाता है एसईओ। एसईओ मैंने आपको बताया था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है। गूगल वही कंटेंट आपको दिखाता है जो वो समझता है कि वो रेलेवेंट है और मीनिंगफुल है और एक सही अथॉरिटी से आ रहा है, ठीक है। तो गूगल के जो कुछ मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी शेयर किए थे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको आपने मीट करना होता है। ये मीनिंगफुल कंटेंट, जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने टीचिंग की बात करी, तो जो टीचर्स हैं वो अपनी एजुकेशनल सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है, तो उनका कंटेंट उसके अराउंड होना चाहिए। ये नहीं कि वो ये लिखें कि आई एम द बेस्ट टीचर
बेस्ट एजुकेशनल सर्विसेज में दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन उनका कंटेंट इसके अराउंड होना चाहिए कि हाउ दे कैन हेल्प यू। ठीक है, तो उन्होंने सर्च किया, देखा कि कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में परेशान है, तो वो उसके अराउंड ब्लॉग्स लिख सकते हैं जिस तरह से मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो रही हैं एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो एसईओ और कंटेंट का लिंक यही है कि कंटेंट को आपके ऑडियंस के सामने लाने के लिए एसईओ इम्पोर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं या हैंड्स रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वील मूव टू द नेक्स्ट। ओके, so the next is writing with the buyer's journey in mind। ठीक है, अब जब आपको समझ में आ गया कि कंटेंट बिजनेस के लिए क्यों ज़रूरी है ताकि आप अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकें, सेकंड हमने ये डिस्कस किया कि कंटेंट कैसे लिखा जाए, हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट कन्वर्ट्स। तो उस पर हमने गूगल की भी अपडेट पढ़ी और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ऐसा कंटेंट लिखा जाए जो अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करे, इंगेज करे और कन्वर्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट हमने एसईओ बेसिक्स को डिस्कस किया कि कीवर्ड रिसर्च किस तरह करनी है, गूगल किस तरह हमारे कंटेंट को रैंक करता है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे कंटेंट में जिसके थ्रू गूगल हमें रैंक करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें ऐसा लिखना है कि बायर जर्नी हमारे दिमाग में हो, जिसकी हमने जो ऊपर बात करी थी ना, इन्फॉर्म, इंगेज और कन्वर्ट वाली, उसका नेक्स्ट स्टेज है अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन। ठीक है, अब हम लिखने के ऊपर आ गए हैं, हम ब्लॉग्स लिख रहे हैं या हम अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला स्टेज होता है अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी सर्विस दे रही हूँ या मैं ऐसा प्रोडक्ट दे रही हूँ, जैसे आपने कहा कि टीचिंग सर्विस है, तो टीचिंग सर्विस में फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ या मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ या मैं बायोलॉजी का टीचर हूँ। ठीक है, तो उनको, आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अवेयरनेस प्रोवाइड करूँगी सबसे पहले स्टेज में कि मुझे क्या आता है और मैं आपको क्या बता सकती हूँ। ठीक है, एज अ फिजिक्स टीचर आई विल शेयर कि मुझे ये चीज़ें अपनी फील्ड से रिलेटेड आती है, अवेयरनेस क्रिएट करूँगी कि फिजिक्स में ये होता है, ये होता है, ये होता है, एंड आई नो दैट एंड दैट एंड दैट। उसमें ब्लॉग्स और गाइड्स आ जाती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप ब्लॉग्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो और गाइड्स लिखो। ठीक है, तो आप बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट है फिजिक्स के या केमिस्ट्री के या जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट पे आप स्पेशलिस्ट हो, उसके आप बेसिक गाइड्स लिखो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, और अपने, जब एक आपको स्टूडेंट है उसको पता चल गया कि अच्छा ये टीचर है, इसको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत अच्छे हाउ टू गाइड्स लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, हमें समझ में आ रहा है कि क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है, बट देयर आर अदर टीचर्स एज वेल, तो व्हाई शुड आई गो विद दिस वन, मैं इस पर्टिकुलर टीचर से कोर्स क्यों लूँ। तो उसमें फिर आपको ना अपनी केस स्टडीज बतानी पड़ती है, अपने रिव्यूज बताने पड़ते हैं। उसमें आप बताएंगे कंसिडरेशन के स्टेज में कि मैंने एक बैच है, 40 स्टूडेंट्स का बैच था, उनको पढ़ाया, उसमें से 30 स्टूडेंट्स का A+ आया। ये कंसिडरेशन स्टेज है, आप कंपेयर करोगे। ठीक है, आप बताओगे कि मैंने इतने स्टूडेंट्स को सक्सेसफुली पास करवा दिया एग्जाम में, उनके रिव्यूज शेयर करोगे, ये कंसिडरेशन है। आप इस स्टेज पे आके आपका जो टारगेट ऑडियंस है, जो स्टूडेंट है, वो ये समझेगा कि अच्छा ठीक है, कि टीचर को कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं और टीचर को पढ़ाना भी आता है। इसका मतलब क्योंकि उसने, उसके पढ़े हुए बच्चे पास हो गए हैं, उसके पढ़े हुए बच्चों का A ग्रेड आ गया, A+ आ गया। उसके बाद फाइनली आप अपने प्रोडक्ट पेजेस, यानी कि आप अपनी सर्विस पेजेस कह सकते हैं इसमें, क्योंकि एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, शेयर करते हैं, जहाँ पर आप बताते हैं कि अच्छा मैं ये कोर्स ऑफर कर रहा हूँ फिजिक्स का, इसमें हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी, इसमें ये होगा, इसमें प्रैक्टिकल क्लासेस होंगी, इस तरह से हम पढ़ेंगे, ये हमारा रोड मैप होगा। ये आपका फाइनल पेज है जिसमें आप अपनी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, और साथ में आप टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं अपने प्रीवियस स्टूडेंट्स के कि उन्होंने हमें ये रिव्यू दिया है आफ्टर गेटिंग द कोर्स फ्रॉम अस। तो ये एक पूरी जर्नी होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक सर्विस स्टार्ट करो, आप एक प्रोडक्ट बेचना शुरू करो और डायरेक्टली अपने कस्टमर को जाके बोलो कि आप हमसे प्रोडक्ट खरीद लो और हम बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्टेज होता है, उसको पता होना चाहिए कि आप क्या दे रहे हो, एजुकेट करना है, अवेयर करना है।
सेकेंड स्टेज है आप उसको बताओ कि आप हमसे क्यों खरीदोगे, हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेज हमारा ये आता है कि आप हम ये ऑफर कर रहे हैं, आप हमसे खरीद लो, और हमारे पास प्रीवियस टेस्टिमोनियल्स भी हैं, हमें लोगों ने रिव्यू भी किया हुआ है। तो इसका जो कोर है, इसका क्रक्स जो है इस सारे डिस्कशन का बायर जर्नी वाले, उसका ये है कि आपका कंटेंट जो है वो आपकी इंटेंट को मैच करना चाहिए। मतलब आप सबसे पहले जब कंटेंट ब्लॉग्स और आर्टिकल्स लिख रहे हो तो उसमें आप डायरेक्टली अपनी सर्विसेज को पेश लाना शुरू कर दो। आप पहले अपने रीडर्स को इन्फॉर्म करोगे कि ये है क्या, उसके बाद तो आपका इंटेंट और कंटेंट मैच कर रहा है, यानी कि आपकी इंटेंट थी कि आप अपने ऑडियंस को अवेयर करो, तो आपने कंटेंट भी ऐसा लिखा कि आप अपने ऑडियंस को अवेयर कर रहे हो। उसके बाद कंसिडरेशन और उसके बाद डिसीजन। इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूँगी हमारे आज के सेशन को, और आपको बताऊंगी कि हम नेक्स्ट कल क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं वर्कशॉप में। सो अभी सबसे पहले मैंने दिस इज वाज द फर्स्ट डे, और आप लोगों में से मोस्टली पार्टिसिपेंट्स वो थे जिन्होंने इस फील्ड में काम नहीं किया हुआ, स्टूडेंट्स हैं या पहली बार सीखना चाहते हैं। तो द होल आइडिया वाज टू आपको मैं ये बता सकूँ कि कंटेंट क्यों ज़रूरी होता है बिजनेसेस के लिए, आप किस तरह क्या स्टेप्स के थ्रू कंटेंट अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह जो सेशन है कल, उसमें हम जाएंगे कि क्या क्या टाइप्स होती हैं कंटेंट की, जैसे कि वेबसाइट कंटेंट हो गया, आर्टिकल्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, सोशल मीडिया के कैप्शंस हो गए, या लैंडिंग पेजेस हो गए, या हमारे पास ईमेल का कंटेंट हो गया। हम इन सारी टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह हमको बेहतर लिख सकते हैं इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और एसईओ का उसमें क्या रोल हो सकता है उसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह उससे नेक्स्ट हमारा ये वो प्लान है कि हम LLM यानी कि ChatGPT, क्लॉड और जेमिनी और इस तरह के सारे AI टूल्स को यूज़ करते हुए किस तरह कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, और अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किस तरह कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से बेहतर प्रॉम्प्ट्स बना के बेहतर कंटेंट लिखवा सकते हैं AI टूल्स से। और अभी के लिए मेरा आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जो कि मैं कल इसको डिस्कस करना चाहूँगी आपके साथ। कुछ रीडिंग मटेरियल है जो मैं आपको ग्रुप जो हमने बनाया है अपना व्हाट्सएप पे उसके ऊपर शेयर कर दूँगी, वो आप ज़रूर पढ़ें। उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, गूगल की अपडेट है कंटेंट से रिलेटेड, और कुछ छोटा सा मेरी तरफ से बनाया हुआ कंटेंट है जो मैं चाहती हूँ आप पढ़ें, ताकि आपको रिवाइज हो जाए आज हमने जो भी डिस्कस किया, और आप किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में सोचें जिसको आप मार्केट करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप पैशनेट हैं। इट कुड बी एनीथिंग, जैसे आपका कोई स्मॉल बिजनेस के बारे में आपका आइडिया हो, आप चाहते हैं कि आप उसको मार्केट करें, तो उसके बारे में सोचें, और आप सोचें कि आप उसके बारे में किस तरह से कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके बारे में थोड़ी छोटी सी आउटलाइन बना लें। आप इसके लिए टूल्स की हेल्प ले सकते हैं, ChatGPT की हेल्प ले सकते हैं। आप उसको अपना आइडिया बताएं। फॉर एग्जांपल गिफ्ट बॉक्सिंग का आइडिया मेरा था, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई मेरा एक बिजनेस प्लान है गिफ्ट बॉक्सिंग का, और मैं चाहती हूँ कि उसके लिए कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट करूँ, रिटन कंटेंट, क्योंकि हमारी ये वर्कशॉप जो है वो रिटन कंटेंट की तरफ फोकस्ड है, वीडियोस और इसकी तरफ नहीं है। तो उससे रिलेटेड आप उसको प्रोवाइड करें अपनी इन्फॉर्मेशन, और उससे पूछें कि भाई हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, क्या आउटलाइन हो सकती है। तो कल हम इंशाल्लाह इसको फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स में वर्कशॉप के आप सबके आइडियाज़ डिस्कस करेंगे, और देखिए कि आपको किस तरह से ये चीज़ आज की समझ आई है, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? जी बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग भी गो थ्रू कर सकते हैं, और मैं एक बार आपको रिपीट भी करवा देती हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट कायनात, आपका क्वेश्चन था व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट कंटेंट राइटिंग सो दैट बिजनेसेस वुड हायर अस, इज इट बाय स्टार्टिंग योर ओन आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स और बाय मेलिंग बिजनेसेस। अच्छा, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो बना लें, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी हम लोग एंड ऑफ द वर्कशॉप डिस्कस करने वाले थे, बट सिंस आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको ब्रीफली आंसर कर देती हूँ
कि द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, स्टार्ट राइटिंग। आपको जो भी एरियाज आपको पसंद है, जो टॉपिक्स आपको पसंद है, फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक का शौक है, या आपको कुकिंग का शौक है, या आपको बुक रीडिंग का शौक है, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि उसके ऊपर लिखना आसान होता है, ठीक है। या कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स लिखें, उनको अपना पोर्टफोलियो बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मतलब बेसिक सा पोर्टफोलियो आप गूगल डॉक्स के ऊपर बना सकते हैं, एंड देन स्टार्ट अप्लाइंग। जहाँ पे भी आपको कंटेंट राइटिंग की जॉब्स या गिग्स नजर आए वहाँ पर आप अप्लाई करें, और जब आपके पास पोर्टफोलियो होगा तो यू कैन डायरेक्टली शेयर दैट विद देम, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जब वो आप पोर्टफोलियो के साथ अप्लाई करते हैं ना किसी भी पोजीशन पे, किसी भी अपॉर्चुनिटी पे, तो इट रियली हेल्प्स वो, क्योंकि आपका काम डायरेक्टली देख सकते हैं, तो देयर आर चांसेस दैट यू विल गेट हायर्ड। अच्छा, किसी का कोई और क्वेश्चन है? तो मैं एक बार इसको फिर रैप अप कर देती हूँ रिपीट करके। समरीना। जी should we wrap up now? Yeah, sure, we should wrap up. And for everyone, I just want to share two things that we will be providing the recording of this session, number one, and number two is tomorrow we will be having a session at 11 a.m. till 12 p.m. So it will be a morning session, 11 a.m. to 12 p.m. I will share the link in the group, but I just want to tell you here so that everyone should know that tomorrow our session is in morning 11 a.m. to 12 p.m. And Zainab, you can wrap up now. Okay, great. So just a few things I would like to repeat. हमने यहाँ पे 3-4 चीजें आज डिस्कस करेंगी डिटेल में। Why businesses need content? अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, ठीक है। इसका शॉर्टेस्ट आंसर यही है कि किसी भी बिजनेस को कंटेंट की जरूरत इसलिए होती है ताकि वो अपनी ऑडियंस तक पहुंच सके। हाउ टू क्रिएट कंटेंट दैट कन्वर्ट्स, ऐसा कंटेंट कैसे लिखें जो कि एक्चुअली में ऑडियंस तक पहुंचे और ऑडियंस हमसे आगे हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे भी। ऐसा कंटेंट जो कि आपकी ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इन्फॉर्म कर सके, उन्हें सही तरह से एंगेज कर सके, वही कंटेंट उन्हें कन्वर्ट करता है। थर्ड वाज व्हाट आर द एसईओ एंड कन्वर्जन बेसिक्स। एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कीवर्ड्स। आपने सही कीवर्ड्स जो आपकी ऑडियंस की एक्चुअल क्यूरीज हैं उनको सर्च किया, उनके बारे में लिखा, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कंटेंट आपका डिस्कवरेबल होना चाहिए। उसके लिए कुछ मैट्रिक्स हमने डिस्कस किए थे कि गूगल किस तरह कंटेंट को क्रॉल करता है, किस तरह इंडेक्स करता है और किस तरह क्यूरीज हमारी शोकेस करता है। द लास्ट वाज राइटिंग विद बायर्स जर्नी इन माइंड। आपने कंटेंट लिखना है बायर्स जर्नी को माइंड में रखते हुए, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड डिसीजन। कि सबसे पहला स्टेज किसी भी बायर का, क्योंकि हम अपना भी अगर देखें तो हम सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि वो क्या है, फिर हम देखते हैं कि अच्छा हमें कहीं और बेहतर तो नहीं मिल जाएगी, या ये बेहतर है, इसकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, ये क्यों अच्छा है, और उसके बाद हम फाइनली डिसीजन लेते हैं। तो इस जर्नी को माइंड में रखते हुए हमें अपना कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। कल के लिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, तो ये है कि आपने सारा रीडिंग मटेरियल पढ़ के आना है ताकि आपको जो है वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और दूसरी चीज़ ये कि आपने कोई भी अपना पसंद का प्रोडक्ट या सर्विस चूज करना है, जिसकी मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं थ्रू आउट द सेशन, और आपने विद द हेल्प ऑफ ChatGPT और एनी अदर AI टूल यू यूज़, आपने उसके लिए छोटा सा एक स्ट्रैटेजी या आउटलाइन बनानी है। डॉक्यूमेंट में ना भी हो, आपके माइंड में हो, आपने बस 5 मिनट में मुझसे शेयर करनी होगी कल के सेशन में वो, कि आप किस तरह से उसके कंटेंट को लेकर चलना चाहते हैं। Zainab, I would like to add one thing that I will appreciate if everyone should write 1 or 2 lines regarding what the content or what they are planning. सिर्फ verbally या आपके mind में नहीं रखें, वो 1-2 lines में लिख लें, because
जब हम ये कहते हैं ना कि माइंड में रख लें तो नॉर्मली पीपल डोंट डू इट. So just consider it as your task and write 2 to 3 lines, or write just in few points that what's in your mind about content and everything, which task Zainab has given to you. Yes, that would be great. You're right, because जो चीज़ हम लिख लेते हैं वो हमें याद भी रहती है और वो काम भी आती है. So it's always better to write. तो आप इसके लिए छोटा सा कोई भी strategy बना लें तो it would really help. That's all And from my side. yes, and secondly, everyone, it will be of great help if you will write, and then Miss Senab, tomorrow will guide you how you can polish your raw ideas, so that by the end of the workshop, everybody will have an idea. Oh my God! Okay, I have started from this brainstorming thing, and now I still have a gray structure of my idea. So you can actually see your progress throughout these 3 days. Great contribution, Anna. So we should wrap up, right, Samrina? Yes, Zainab, we should wrap up. Okay, everyone. Thanks for joining the session, and I hope it was a great experience today. And if anyone wants to give any sort of feedback, I will appreciate if they can share the feedback in the group. And thank you, everyone, once again. And Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much for attending, everyone. Allah Hafiz.